external RAM, external ROM, or external you can say secondary storage. But in microprocessor, in microcontroller, all these equipment are built in single chip, right? Just like this. This is a chip. This is a microcontroller chip where ROM, RAM, and processor is inside the chip. Second is system on chip. What is this actually system on chip? What the name indicates system on chip means what? Everything on the chip. Sorry, Every everything component on on the the one chip. every component on one chip. So what is the difference between microcontroller and system on chip? There? Microcontroller also have all the component in one chip. Hmm? What? No, Sir, memory difference? no, no, no. Just see this figure. I think now it is clear. Yes, sir. Hmm? What is this? Motherboard. This is a small size of. It is different than motherboard actually what we are using in our computer system. It is a very small size of chip where we have integrated all the components. Just like you can see here, this is the USB device, right? This is the RJ45 with the help of this we can say port. We use the internet connection in our system, right? So these are the different components we have integrated in the single chip. That's why it is called system on chip. Yeah? Your SoC comprises a CPU, peripheral devices, right, like timer or counter, communication interface, I2C, that is inter-integrated circuit, serial peripheral interface, and universal asynchronous receiver and transmitter. Right? So these are the communication interface and power मैनेजमेंट सर्किट ऑन अ सिंगल आईसी. हमने क्या किया है, एक सिंगल पीसीबी पे we have integrated all the equipment, right? So that's why it is called system on chip, right? Next, ASIC processor. What is this? ASIC means application specific integrated circuit. What the name indicate? Used for only specific applications. Very good, right? Firstly, the chip was designed to use for particular application owned by the single company, so no copyright of product is allowed. Secondly, it consume little power, right? So that means कि ये जो हम डिजाइन करते हैं, it is only for a specific system. Just like here you can say this processor we are using in printer PCB, मतलब प्रिंटर का जो सर्किट बोर्ड होता है वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं, right? तो ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, right? So that is called is application specific integrated circuit. मतलब it is dedicated to some specific task only, right? And DSP, what is this actually? Digital signal processing. You may wonder these are the most used processor for audio video application. कहीं पे देखा आप लोगों ने इसको? सभी के घर पे टीवी में. यस, टीवी में, ठीक है. तो एक्चुअली सपोज कि अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टीवी में अगर आपका कोई स्मार्ट टीवी है, राइट, स्मार्ट टीवी है, तो वी आर यूजिंग दैट स्मार्ट टीवी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट? तो वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. So these are the some input output port for the digital signal processing, right? So for example, अगर हमको हमारे सिस्टम से कहीं लाइव स्ट्रीमिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, कैमरा को हमारे पीसी पे अटैच करते हैं और फिर हमारे सिस्टम से वो डेटा लाइव ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो लेकिन कैमरा को पीसी से जब आप अटैच करते हो, तो कैमरा के जो सिग्नल पीसी को मिलते हैं, तो वो इसके थ्रू होते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, राइट? तो ये भी एक टाइप का क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है. इस इसके चिप में इनबिल्ट आपका रैम, रोम और प्रोसेसर होता है. विद द हेल्प ऑफ दैट सिस्टम वी कैन ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल like audio, video, images, etc. Right? So this is the one type of embedded hardware, digital signal processing. Now the input devices and output devices.
अभी एक इमेज आप देखिए, ये आप आई थिंक बहुत से लोग इसको यूज भी करते हैं। बता सकते हैं क्या है ये, क्या शो करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे? सर ये एक बात है, सॉरी, फिटनेस बैंड, राइट? So where we are using input and where we are using output? input in the watch and output on the mobile. Correct? Are you sure? Yes, sir. We are inputting via app to the watch for watch. Actually, without this watch, right? The ये जो एप्लीकेशन आप देख रही है, दिस इज एप्लीकेशन, द गूगल फिट एप्लीकेशन ना, गूगल फिट। किसी ने यूज किया है इसको? किया है या नहीं किया है, मैं पूछ रहा हूँ। यस और नो? नो, राइट? Yes, sir. No, sir. नहीं किया होगा, किया है, किसने किया है? Sir, in Samsung phone, it is already there in health app. यस, ठीक है, इन सैमसंग, इन एंड्रॉयड फोन, अभी मैं खुद इसको यूज करता हूँ, गूगल फिट ऐप। तो आपको इसके लिए कोई स्मार्ट वॉच होने की जरूरत नहीं है आपके पास में। आपके मोबाइल में ही एक मोशन सेंसर लगा रहता है। तो जैसे ही आप वॉक करते हो, रनिंग करते हो, तो वो क्या होता है कि वो मोशन सेंसर क्या होता है कि वो सेंसिंग को डिटेक्ट करता है, जैसे ही आपके मोशंस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, स्टेप काउंट करता है, स्टेप एंड हार्ट पॉइंट। जैसे स्टेप काउंट करता है, ये जो आप देख रहे हैं 6, 3, 2, 1, दिस इज द स्टेप काउंट एंड दिस इज द हार्ट पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं 14, ठीक है। तो ये इसका डेली का जो हम टारगेट सेट करते हैं उसके हिसाब से रनिंग होते रहता है। तो ये क्या करता है, आपका मोबाइल जैसे जैसे रोटेट, मतलब कि मोशन में जाता है, जैसे आप जहां जहां भी आपके मोबाइल को लेके जाएंगे, तो मोशन को डिटेक्ट करता है और उसके लिए आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन इनपुट एज ए सेंसर है, राइट? सिमिलरली दिस इज द स्मार्ट वॉच, ठीक है। स्मार्ट वॉच में क्या हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, फिटनेस बैंड टाइप है सपोज एक। तो सेम कंसेप्ट आपका इसमें भी हो रहा है और मोबाइल पे भी हो रहा है। इसमें क्या है, ये आपके हाथ में आप लोगों ने इसको वेट किया रखा है। तो ये क्या करता है, जैसे आपका हाथ मूवमेंट देता है, तो उसी समय पे क्या करता है, इसको जो मोशन है उसको सेंस करता है और उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको देते रहता है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपका जो मोबाइल है वो आपका यहाँ पे है, और आपका जो वॉच है वो आपका आपके रिस्ट वॉच है, ठीक है। तो आप दोनों को ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो आप दोनों जगह पे उसका सेम आउटपुट देख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये नहीं है, तो कुछ ऐसे स्मार्ट बैंड आते हैं जो कि आपको स्मार्ट बैंड आपको अपने हाथ में यूज करना पड़ता है और उसका कनेक्शन आप मोबाइल पे, ठीक है। तो आपके मोबाइल में भी इनबिल्ट सेंसर होता है, मोशन सेंसर, जिसके बेस पे स्टेप को काउंट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे बताया था। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले हो सकता है, या फिर कोई रिजल्ट हो सकता है इस तरीके से, और इनपुट डिवाइस सेंसिंग के बेस पे हो सकता है, या फिर आप कोई कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर कर सकते हो, या जो भी एक्स वाई जेड तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। Now the bus control. What is this? The bus control is a communication device that transfer data between the component inside an embedded system. ठीक है. Some of the bus controller are serial buses and universal buses. I think अभी आपको इमेज देख के समझ में आएगा कि what is this. समझा किसी को कुछ? Yes, sir. क्या? It is convert the USB ठीक into micro USB or राइट। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो पोर्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो बस कंट्रोल है, ये जो इस साइड में इसका पोर्ट क्या है, ये HDMI पोर्ट। HDMI port, I think all of you are familiar with HDMI. Yes, Yes sir. or no? yes, sir. Yes, sir. You are using in your smart TV or anywhere. Okay, HDMI means high definition media interchange, right? And this is the VGA port. Earlier we are using VGA port in our system. So this is the we can say this is the interchange of VGA signal to HDMI or HDMI signal to VGA signal, right? So this we are using for bus control, right? And this is the micro USB to normal USB. This is called, we can say इसको हम लोग OTG केबल, राइट, OTG डिवाइस। तो हम लोग हमारे मोबाइल में विद द हेल्प ऑफ दिस OTG डिवाइस वी कैन यूज और सेकेंडरी स्टोरेज, लाइक we can use the pen drive in our mobile system, right? Next is memory. To store the data and deal with the memory management, memory device like flash memory, SD card,
EEPROM is required. Some of the memories used in embedded system on non-volatile RAM, volatile RAM and DRAM, dynamic random access memory. ठीक है, तो microcontroller, reducing input devices, bus controller and memory. This is the basic hardware component that we are using. Embedded component are essential building block of embedded system, application software, error handling and debugging software, right? So this is the application software and system software. What is the difference between application software and system software? Anyone can tell me? That you have learned in software engineering, I think. So application software performs a dedicated task, whereas system software handles overall. System software basically system software deal with the computer hardware, right? It is the base for application software, right? So the example of system software is operating system, device driver, etc. And application software, we can design application software based on our purpose or based on our task. Suppose you want to prepare a report, so you can use the Microsoft Word, you can use the Microsoft PowerPoint presentation, you can use the Microsoft Excel. So all these are application software. You can install or uninstall application software anytime. It does not affect in your system. But without system software, you cannot run your system, right or wrong? Without system software, you can run. Without OS, we cannot run our system, right? So it is the base for application. So first is device driver. Anyone tell me what is the device driver actually? As the name indicates, device and driver. What is this? क्या हो सकता है? क्या लगता है? डिवाइस कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर्स लगते हैं. Okay. और why it is called device driver? Something is there, na? Sir, it controls the devices. Very good. It controls the specific device. That's why it is called device driver. For example, first time जब भी हम लोग हमारे USB जैसे आपने कोई भी आप पेन ड्राइव लेके आए, फर्स्ट टाइम हम हमारे सिस्टम पे लगा रहे हैं, नया पेन ड्राइव लेके आए हो आप, या फिर ऐसा पेन ड्राइव जो आपने कभी आपके सिस्टम पे नहीं लगाया, तो हम वो पेन ड्राइव हमारे सिस्टम पे लगाते हैं, तो आपने देखा इस साइड में आपको कोई नोटिफिकेशन आता है ना, बॉटम साइड में क्या होता है वो नोटिफिकेशन, कभी आपने ऑब्जर्व किया है? सर परमिशन मांगते हो? नहीं, और भी कुछ होगा ना, रेडी टू Device driver installing, ready to install. डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉलिंग, रेडी टू यूज, है ना. हम इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं हमारे पेन ड्राइव को. क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर आप पेन ड्राइव को ओपन करेंगे कभी फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एक छोटी सी आईसी लगी रहती है और एक फ्लैश ड्राइव रहता है. फ्लैश ड्राइव मतलब मेमोरी पर्पज के लिए, और जो एक आईसी लगी रहती है वो क्या होता है, उसके अंदर उस पेन ड्राइव का जो ड्राइवर होता है, क्योंकि पेन ड्राइव एक डिवाइस है हमारा, ठीक है, उसको सिस्टम में कैसे ऑपरेट करना है वो सिर्फ डिवाइस को पता है. तो वो डिवाइस ड्राइवर उस डिवाइस को ऑपरेट करने का काम करता है हमारे सिस्टम के अंदर, राइट. तो क्या होता है, जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम लगाते हो तो उसका डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और फिर वो उसके बेस पे ही आपके मतलब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर और आपके पेन ड्राइव में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, तो जो उसमें जो छोटा सा माइक्रो कंट्रोल लगा रहता है, उसके रोम में इसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल रहता है. जैसे आपने उसको आपके सिस्टम पे प्लग इन किया, वो डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा. ठीक है, इवन आप जब अपने मोबाइल को फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम पे लगाएंगे तब भी वो आपको इसी तरीके से बताएगा. ठीक है, आप फिर आप फॉर एग्जांपल आपको अगर मान लो कि प्रिंटर आपको अपने सिस्टम पे कनेक्ट करना है, तो प्रिंटर तो अभी प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है. तो ड्राइवर एक्चुअली क्या करता है, उस प्रिंटर को कैसे ऑपरेट करना है ये सिस्टम को नहीं पता है. ठीक है, लेकिन वो डिवाइस ड्राइवर को पता है, तो वो हमको डिवाइस ड्राइवर क्या करना पड़ता है, हमको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. एंड दैट डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट, इट इज द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द कंप्यूटर एंड पर्टिकुलर डिवाइस. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बिकॉज ओनली ड्राइवर नो हाउ टू रन द व्हीकल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर.
नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप लोग आई थिंक पढ़ रहे हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आप सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या अभी ओएस से स्टार्ट हुआ है? System programming. सिस्टम प्रोग्रामिंग तो आई थिंक जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं डीएससी वाले, वो बता सकते हैं मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओएस? Operating Sir, system it is is a system system program. software that handles memory management, input output management. Operating It system is the is system it is the software system which manage software all that the operations. it is the system Computer software operation. that manages the computer hardware, and it provides the base for application software, and it acts as a intermediary between the user of the computer and computer hardware. Okay. So with the help of operating system, we can interact with our system. Without OS, we cannot interact our system. For example, if suppose there is no Android in your system, in your mobile, how you can use your mobile? Is it possible? No, sir. No. Right? Without OS, you cannot run your system. Without application software, you can run because application software is depend on our needs. We can install or uninstall at any time. But without system software, without OS, we cannot run our system. So this is one of the software for embedded software. Right? Now, how you design the embedded system like embedded programming? So this is not in your actually syllabus, but just for knowledge. With the help of C language, we can program embedded programming. We can program embedded system. These are the some features. With the help of embedded C is something different, right? C language is normal C language, but embedded C is something different. We are using some inbuilt syntax for particular embedded programming, right? So this is the embedded C. So performance wise better, easy to use, more reliable, directly interact with the operating system, because C is also one of the system programming language. Portable and compatible with any hardware, less over the heat and better for optimization. This is not in your syllabus, just for information I am telling you. Right? Support Windows and Linux. And next, there are total 4 types of language. With the help of this language, we can design any embedded programming like C for C language first. Second one is embedded C. Third one is embedded C plus. It's an enhanced programming language with few advantages over C. Security wise, better than C language, much closer to real world applications. Software development is easy. C++ uses the object-oriented paradigm for data abstraction and encapsulation. What is the data abstraction and encapsulation? So data abstraction means hiding the data from the Yes, user. And data hiding from the encapsulation user. That means is unwanted data we can hide from the user, right? Hmm. It also include fewer features. It also includes features like polymorphism, classes, and inheritance. Suitable for 3D imaging and graphical applications. And last one is MicroPython, right? Normal Python is something different, and MicroPython is something different. With the help of MicroPython, we can design the embedded programming. In our syllabus, we are using Python or C for designing embedded system, right? In practical of IoT, we can perform practical. We will perform practical in one kit there is called Raspberry Pi and Arduino. In that kit, we will use the Python or C in our practical. So MicroPython is open source object-oriented software used for real-time application. It is human readable and easy to code. The programming API use built-in exception and error handling. What is this exception and error handling? I think you have learned in the TPL subject. Exception and error handling. What is this? Anyone? Sir, it is the way of handling errors and exceptions, if any, generated in the system. During the runtime, right? During Yes. the runtime, if program encountered any error, so with the help of this exception and error handling, we can handle the error during the runtime, right? This language is suitable for developers who are not interested in going through the low-level hardware detail. Low-level hardware detail means system programming.
because we are not using system programming in Python. This is the actually completely high level language. These syntax are normally human readable, right? It is used for the data analysis of sensor devices. If the user can write the test cases in Python to debug the hardware. Debugging means what? I think you will learn in software engineering. What is debugging? Anyone? Method to Process find to out find bugs. out errors. Sorry. Method to find out bugs in the Method program. to find out bug. Okay. Where it is entirely in the hand of developer to choose C, C++, Python for a given application. Right? अभी हम पे डिपेंड है कि हम किस टाइप का एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं और हम किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में फैमिलियर है, तो हम हमारे पर्पस के अकॉर्डिंगली और क्या फीचर्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में है जिसके बेस पे हम लोग हमारे एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम पे डिपेंड है हम कौन सा टाइप का मतलब कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करके एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करेंगे. So embedded software development lifecycle. The proper embedded software has to be written to meet the requirement of customer and to bring high quality product to the market. To do that is in an efficient manner to make your embedded product. Right? अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या स्टेप होंगी. ठीक है, एक्सप्लेन आपको करना है क्योंकि ये आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यू हैव लर्न इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. व्हाट इज दिस? So we have to gather the requirements, means what should the system exactly do, what tasks should it perform, and what all things are required to build that system. Okay, very good. ठीक है. Now, first of all, you need to know and understand. You need to know and understand the end user specification. Right. Second is examine. Means what? Some of the steps are different. Maybe slightly one or two steps, not more than that. Examine. What is the word? Just analyze the component required to make the product. Analyze the component required to make the product. Means what? Examine means what we will do in this step. To inspect. To test or examine. ओके, देखो हमको क्या करना है, एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, राइट. तो फॉर एग्जांपल कि हमको एक रूम टेम्परेचर सेंसर बनाना है. ठीक है, तो अभी आपको पता है कि टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर के सेंसर के लिए हमको जब मतलब कि रूम टेम्परेचर डिवाइस बनाना है कि भाई रूम का क्या टेम्परेचर है, हमको सेंसर्स लगेगा, राइट. तो हमको क्या एग्जैक्टली क्या एनालाइज द कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट. तो हमको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है, दैट इज द एग्जामाइन स्टेप. Next is design. Means what? So what all requirements we have gathered and analyzed, we have to make a design of it. हाँ, अभी देखो जो हम कंपोनेंट हमने चूज किए हैं, ठीक है, उसका कनेक्शन मतलब डेटा फ्लो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए. ठीक है, सेंसर आपका वेदर को सेंस करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर उसको इसे आउटपुट कैसे दिखना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, डिजाइन में कंप्लीट हम लोग सिस्टम का डिजाइन बनाते हैं कि कैसे डेटा फ्लो होगा, कैसे आउटपुट दिखेगा, कैसे वो इनपुट लेगा, एक्सेट्रा, और कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो डेटा मतलब उसका प्रोसेस होना चाहिए, आउटपुट कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, सारी चीजें. It is the most critical phase of development cycle. The developer need to develop embedded hardware and software individually and integrate both. Right? Now, develop means what? जो हमने डिजाइन बनाया है, To code. डिजाइन के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, Actual हमारे implementation part. correct actual implementation. We can connect all the devices each other based on the design, and we develop the code or we design the code for interfacing, right? In the development, the programmer develop the prototype using the available hardware software tool to measure the customer specification. Next step is test. What is this? Testing our Testing project process. whether they're working fine or not. हम लोग जो कस्टमर ने हमको रिक्वायरमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो सिस्टम डिजाइन किया है, दैट वी विल टेस्ट. हम उसको टेस्ट करेंगे
कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. Next is deploy. Deploy means what? To deliver the product. Yes. After completion of all the procedure, that means we develop, designing and testing, we deliver that final product to the end user for using, right? After testing the product, the developer check the result in real-time environment to realize the proof of concept, right? The proof of concept is a technique used to validate an idea, but it may be deliverable, right? आपको पता होगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई थिंक आपने पढ़ा है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेस्टिंग, करेक्ट? वीवी Yes, sir. मॉडल जो होता था वेरिफिकेशन एंड Yes, sir. वैलिडेशन होता था कि जो भी आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को जो टास्क दिया गया है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. और वैलिडेशन क्या होता है कि जो सिस्टम बनना चाहिए था वो बना है कि नहीं, ठीक है. तो होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. लास्ट इज सपोर्ट एंड अपग्रेड मींस व्हाट? सपोर्ट एंड अपग्रेड में क्या होगा? Sir, maintenance. मेंटेनेंस, राइट. मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर का अपग्रेड जो भी रहा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, अपग्रेड करना है, तो वी विल डू इन दिस फेज, राइट. Depending on the user requirement, support and upgrade have to be provided to add the new features and regularity. Okay. So this is the software embedded software development life cycle. Now the general purpose operating system. So these are some features that you are experiencing in day-to-day life whenever you are using OS, whenever you are using your computer system. So run in multitasking environment with one or more tasks. It is correct or wrong? Yes, sir. Correct. Correct. You can listen the song. Meantime, you can prepare any report, right? Or you can do your study. You can do your any other task with the. So that means we can do the multitask in our system. Right? The generic algorithm had been implemented for performing the parallel tasks. They are meant for faster processing and high performance. Parallel task means simultaneously, मतलब that means कि more than two or more than tasks we are doing at the same time, right? So that is called parallel task. Complex operation like 32-bit and 64-bit addition subtraction can be done. What is this actually 32-bit and 64-bit? कोई बता सकता है क्या होगा 32-bit and 64-bit? Yes or no? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपको नहीं आता? डायरेक्ट बताओ, मैं बताता हूँ ना फिर. लेकिन आप वो यस और नो कुछ तो रिप्लाई करो. ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी हम ओएस कोई भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक बेसिक वर्जन होता है. मतलब वी कैन नॉट से वर्जन, मतलब कि जब प्रोसेस करता है वो ओएस किसी भी इंस्ट्रक्शन को, तो हाउ मेनी बिट इट कैन प्रोसेस इन सिंगल टास्क, राइट. तो 32-bit एंड 64-bit मीन्स जो भी एक इंस्ट्रक्शन पास होंगे ओएस में, या तो आइदर वो 32-bit होगा या फिर 64-bit होगा, right? तो इसमें क्या होता था, पहले जब हम लोग ओएस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते थे तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ता है कि 32-bit इंस्ट्रक्शन 32-bit वाला हम लोग ओएस इंस्टॉल करेंगे और 64-bit वाला मतलब कि ओएस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. तो डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर बिट वी आर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन आवर सिस्टम, राइट. अगर आपका ओएस 32-bit का है तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करने जाएंगे अपने सिस्टम में तो वो भी आपका 32-bit का ही होना चाहिए, ठीक है. अगर 64-bit का ओएस अगर आप यूज कर रहे हो तो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करने जाएंगे वो भी 64-bit का ही होना चाहिए, अदरवाइज तो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है. तो ये क्या होता था पहले जब हम इसको इस टाइप के ओएस को यूज करते थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे क्योंकि कॉम्पिटिबिलिटी का मैटर हो जाता था. 32-bit ओएस यूज कर रहे और कोई भी लेटेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो 64-bit में ही डिजाइन किया है वो हमारे 32-bit ओएस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वर्जन आया है दैट इज कॉल्ड 86X, ठीक है. तो ये क्या होता है, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा,
अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या करता है कि 86 मतलब क्या करेगा कि ये आपके 32 बिट को भी सपोर्ट करेगा और 64 बिट को भी सपोर्ट करेगा। तो हम लोग अगर 86 डालते तो आप 86 के अंदर आप 64 बिट का ओएस भी डाल सकते हैं, मतलब 64 बिट का एप्लीकेशन भी डाल सकते हो, 32 बिट के एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ये विंडोज 7 तक की कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही विंडोज 8 और विंडोज 8 का ओएस आया तो वो बाय डिफॉल्ट 64 बिट का ही आता है, और उसके बाद से जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे बनते हैं वो सारे के सारे हमारे 64 बिट में ही आते हैं। 32 बिट का ओएस अभी कम्प्लीटली बंद हो गया है, उसको कोई यूज ही नहीं। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. cannot respond and interact with the outside analog world। ठीक है, अभी हमारा जो नॉर्मल ओएस है, अभी उसमें कोई भी आप सेंसर्स वगैरह लगाएंगे तो रन नहीं होता है ना, कोई भी उस सेंसर को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए सेपरेटली एम्बेडेड सिस्टम और उसका प्रोग्रामिंग आउटसाइड वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा। जितना आपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, प्रिंटर ये वो सारी चीजें, सिर्फ उसको ही कनेक्ट करके इंटरेक्ट करता है, दूसरे किसी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी मोबाइल का एक एग्जांपल दिया था, तो अगर आपका मोबाइल है तो आप उसको कहीं पर भी मूवमेंट करते हो तो उसका क्या करता है, जो सेंसर्स लगे रहो उसके अंदर, तो वो आपके मोशन को भी डिटेक्ट करता है क्योंकि वो एम्बेडेड सिस्टम है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है वो एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल ओएस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, the cost is high due to high memory ROM and RAM availability, power consumption and size are not a major design constraint। ठीक है, अभी आपका जो नॉर्मल हमका सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या होता है उसका जो सेपरेट सेपरेट हम लोग उसमें इक्विपमेंट लगाते हैं। हार्ड डिस्क हमारा अलग होता है, हमारा रैम अलग होता है, हमारे सीपीयू के फैंस अलग होते हैं, सबको अलग अलग पावर सप्लाई आपको देना होता है। तो पावर कंजप्शन भी होता है और साइज आर नॉट द मेजर कंस्ट्रेंट डिजाइन, मतलब कि लैपटॉप भी आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, तो डिपेंड कि हम उसको कितना कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, तो ये कोई मेजर कंस्ट्रेंट नहीं है। नॉट रियल टाइम एंड रिएक्टिव इन हार्श इन्वायरमेंट। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, अभी हम लोग जो नॉर्मल हमारा ओएस रहता है वो एकदम क्या है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, हम लोग उसको इजीली उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल विंडोज लिनक्स एंड मैक ओएस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज आर्टोस, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज? Sir, Time is major time is constraint. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा देयर इज समथिंग टाइम कंस्ट्रेंट, राइट, उसको स्पेसिफिक टाइम में ही वो टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सिस्टम विच इज इसेंशियल टू फिनिश इट्स टास्क एंड सेंड इट्स सर्विस ऑन टाइम, then only it is said to be real time operating system। yes or no? Higher resources of a personal computer and is the software that manage the computer hardware and it provide the base for application program theory between the user of the computer and computer hardware, right? ये क्या होता है, it hosts the application which run on the PC, मतलब आपका OS होगा तभी आप दूसरे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मतलब वो OS कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम अभी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, तो अगर हम एप्पल का फोन यूज करेंगे तो हम कोई भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नो No. कोई भी एप्पल की एप्लीकेशन है ना, iOS की एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ठीक है ना, No. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और इसी के ऊपर डिपेंड है, आपके ओएस के ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कौन से एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, this operating system is specially designed to run the various applications with an exact timing and a huge consistency. Particularly, this can be significant in measures and industrial automation systems where
अ डिले ऑफ प्रोग्राम कुड कॉस्ट अ सेफ्टी हैजार्ड। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको कल जो एक वीडियो शेयर किया था, उसमें रोबोट्स जो रहते थे उनका काम, जो उनका जो टास्क है वो स्पेसिफिक और इफिशिएंटली जो आपने टाइम दिया है उसी में इसको कंप्लीट करते थे। क्योंकि अगर उसने उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टास्क परफॉर्म नहीं किया तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो कार अगले वाले प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है। ठीक है, और प्रीवियस जो रोबोट है उसने जो टास्क किया है उस पर डिपेंड है कि अगला रोबोट उस पर क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो अगर उसमें जरा भी टाइमिंग का कुछ डिले हुआ है ना, या फिर फेलोर होता है, तो आगे ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेजर टाइम कंस्टेंट होता है। अगर वहां पे जरा भी डिले हुआ तो सेफ्टी हैजर्ड होता है। तो रियल टाइम सिस्टम मीन्स, अभी हमने आरटोस देखा, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम मतलब कि कोई एक हमने कोई सिस्टम बनाया जिसके अंदर आरटोस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे कि ईसीजी मशीन हो गया, एटीएम मशीन हो गया, दिस आर द रियल टाइम सिस्टम है। और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो real time system means that the system is subjected to real time. It is that is response should be guaranteed within the specific timing constant, or system should meet the specific deadline. Yeah. For example, flight control system, real time monitor. Types of the real time system based on the timing constant. ठीक है, अब कौन से टाइप्स हो सकते हैं मतलब रियल टाइम सिस्टम के, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो आप ये लाइन पढ़ के मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज दिस एक्चुअली हार्ड रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि हम पहले भी देख चुके थोड़ा सा। which require deadlines. टाइम में कंप्लीट होता है। इट ऑलवेज फॉलो द डेडलाइन। ठीक है, जो भी उसको डेडलाइन दिया है उस डेडलाइन में ही वो टास्क कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, जैसे ही उसने डेडलाइन मिस किया मतलब वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम नहीं होता। दिस सिस्टम कैन नेवर मिस इट्स डेडलाइन। मिसिंग द डेडलाइन में हैव द डिजास्टर consequences. The usefulness of result produced by the hard real-time system decrease the abruptly and may become negative if readiness increase. Right? तो अगर इसने पर्टिकुलर डेडलाइन पे टास्क परफॉर्म नहीं किया तो उसका रिजल्ट जो है उसको मतलब से ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा अगर उसने पर्टिकुलर डेडलाइन में टास्क को कंप्लीट करके नहीं किया। जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, अगर आपने किसी फ्लाइट को लैंडिंग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आपके सिस्टम से फ्लाइट को लैंडिंग के इंस्ट्रक्शन पहुंचने में अगर मिस मैच हो गया या फिर डिले हो गया, ठीक है, आपने लैंडिंग का इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन उस समय तो लैंड नहीं कर पाए फ्लाइट, और फिर आपने कुछ समय के बाद दूसरी फ्लाइट को लैंडिंग का इंस्ट्रक्शन दिया, तो दोनों फ्लाइट में क्लैशेस होते हैं। तो डिपेंड कि आपको डेडलाइन को कभी भी मिस नहीं करना है। सेकेंड इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इसमें क्या होगा, So deadline miss कर No specific deadline. कोई इशू नहीं है। Deadline is not mandatory. हाँ, this type of system can miss the deadline occasionally with some acceptably low probability। ठीक है, मिसिंग द डेडलाइन हैव नो disaster consequences। मीन्स व्हाट, कि इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, देखो टेलीफोन स्विचेस। अब मान लो कि क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम यहाँ से कुछ बोलते हैं, उसको कुछ डिले के बाद सुनाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी कभी? Yes, sir. यस सर। ये सिस्टम तो हमारा रियल टाइम है ना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसको इमीडिएट सुनाई देना चाहिए, हमारा सिस्टम रियल टाइम है। लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी हमारे डेटा डिलीवरी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क और वेदर कंडीशन हमारा डेटा डिलीवरी थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, तो हम जो बोलेंगे उसको थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। अगर हम उसका और एक एग्जाम्पल दें, तो अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखते होंगे, है ना, कहीं की मैच की चल रही है, कुछ और चल रही है, तो वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और आपके टीवी या आपके डिवाइस पे आने में कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब कुछ सेकंड्स का डिले होता है या नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. वो रियल टाइम है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे कुछ जो डिले है वो पॉसिबल है, उससे हमारे सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यस और नो? ठीक है, तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, अब Yes. टर्म्स रिलेटेड टू रियल टाइम सिस्टम क्या है? फर्स्ट इज जॉब। A job is a small piece of work that can be assigned to a processor
एंड मे और मे नॉट रिक्वायर रिसोर्सेज। मतलब कोई भी टास्क आपने सिस्टम को दिया हुआ है उसको हम लोग क्या होते हैं, जॉब होते हैं। टास्क क्या है, अ सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स। मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर आपको एक टास्क दिया कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिपोर्ट बनानी, ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क हो गया। लेकिन वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब परफॉर्म करना पड़ेंगे। क्या जॉब, पहले तो आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, फिर मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगी, फिर आप हर एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसमें से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो आपकी रिपोर्ट में डालेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैंने टास्क दिया था कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिपोर्ट बनानी है, लेकिन वो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको मल्टीपल जॉब परफॉर्म करने पड़े। ठीक है, तो टास्क इज द सेट ऑफ रिलेटेड जॉब दैट जॉइंटली प्रोवाइड सम सिस्टम फंक्शनैलिटी। अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, sir. ठीक है, जैसे कि Yes, sir. मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे लेक्चर देने का एक टास्क, लेकिन क्या है, मैं गूगल मीट यूज कर रहा हूँ, मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मैं अपना माइक यूज कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब हो गए। ठीक है, लेकिन ये कलेक्टिवली सारे जॉब को अगर हम मर्ज करेंगे तो मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या कि मैं एक लेक्चर डिलीवर आया समझ में? तो दिस इज कॉल्ड टास्क। ठीक है, रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब, इट इज द टाइम एट विच जॉब बिकम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज टाइम ऑफ जॉब, मतलब कि जब जॉब आपका एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। ठीक है, अब इसको आप एक्चुअली ये रन टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी ओएस के अंदर, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि जितना आपको समझने के लिए जरूरी है। तो क्या होता है कि हम जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेस या कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो उसकी एक प्रोसेस बनती है और वो प्रोसेस सिस्टम में जाती है, मतलब प्रोसेसर के पास जाती है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है। टेक्निकली प्रोसेसर जो है हमारा एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। भले हम मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में रन करते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस रहती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में थोड़ा थोड़ा करके सभी प्रोसेस को सेटिस्फाई करते रहती है, तो हमको लगता है कि हमारा सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन टेक्निकली हमारा प्रोसेसर सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी यही है। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि हमारा प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, दैट मीन्स कि वहाँ पे 8 या 6 कोर प्रोसेसर जॉब परफॉर्म होती है। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो Yes, जब sir. आपके प्रोसेसर में सारी प्रोसेस जब जाती है तो कुछ प्रोसेस मान लो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रही है और नया इमीडिएट आपने कोई एप्लीकेशन ऑन कर दिया तो उसकी प्रोसेस बनती है। ठीक है, तो प्रोसेस जब तक प्रोसेसर के पास जाने के लिए हम उसको रेडी करते हैं, मतलब जैसे आपने एप्लीकेशन ऑन कर दी, इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द रिलीज टाइम फॉर अ जॉब। और जब वो फिर एग्जीक्यूट होगी वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा। ठीक है, वो आप पढ़ोगे ओएस के अंदर बहुत अच्छे से। तो execution time for a job means what? It is the time taken by a job to finish its execution। मतलब जब आपका प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लेता है, ठीक है, और जब उसको एग्जीक्यूट करता है तो उस जितना भी टाइम उसको लगता है एग्जीक्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ जॉब। Deadline of a job. Deadline means what? It is the time by which a job should finish its execution. Deadline of two types, absolute deadline and relative deadline। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम उसको एक डेडलाइन देते हैं कि ये, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पे आपको भाई ये 5 सेकंड के अंदर आउटपुट देना ही देना है। ठीक है, तो सिस्टम हमारा 2 सेकंड में भी दे सकता है, 3 सेकंड में दे सकता है, लेकिन फाइनल डेडलाइन क्या है, 5 सेकंड। ठीक है, तो वो उसको फॉलो करनी पड़ती है। तो डेडलाइन क्या हो सकती है, एब्सोल्यूट डेडलाइन और रिलेटिव डेडलाइन, अभी हम बताऊंगा आगे में क्या होता है दोनों चीजें। तो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब टू द इंस्टेंट व्हेन इट्स फिनिश। मतलब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे कि आप मैंने एक बजे लेक्चर लेने के लिए बोला, ठीक है, लेकिन आप लेक्चर के लिए आ गए सपोज कि 1 में 10 की दे रहे हैं, मतलब कि 12:50 को आप लेक्चर के लिए आ गए। ठीक है, तो आप 12:50 को लेक्चर के लिए मतलब आप रेडी हो गए लेक्चर के लिए, लेकिन मैंने लेक्चर डिलीवरी कब स्टार्ट करी, 1 o'clock। ठीक है, और फिर 1 o'clock से 2 o'clock तक मैंने लेक्चर लिया, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, 1 o'clock टू 2 o'clock, मतलब जब मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो 12:50 से लेके 1 तक आपके लिए जो 10 मिनट था, दिट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes. Yes. Yes, हम sir. इसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। ये डिप्लोमा वाले बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे क्योंकि उन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप भी पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो और उसमें आगे कंटिन्यू, मैक्सिमम
allowable resources time response time of a job is called the relative deadline. मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि 5 सेकंड आपने एक पर्टिकुलर इसके लिए असाइन कर रखा है, तो अगर वो कोई पर्टिकुलर जो जॉब है वो 3 सेकंड में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया कि वो 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड, ठीक है। तो जो 5 सेकंड होगा वो रिलेटिव डेडलाइन होगा, और एब्सोल्यूट डेडलाइन क्या है, एब्सोल्यूट डेडलाइन ऑफ अ जॉब इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव डेडलाइन प्लस इट्स रिलीज टाइम, ठीक है। मतलब जैसे कि आप मान लो कि 12:50 को लेक्चर के लिए आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने रिलीज हो गए कि आप 12:50 को जो आपके मतलब कि लेक्चर के लिए स्टार्ट मतलब कि आप रेडी है, लेकिन मैंने 1 o'clock लेक्चर लिया और उसके बाद 2 o'clock कंप्लीट किया। तो ये जो टाइम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेडलाइन, ठीक है, इतना पर्टिकुलर टाइम। और ये जो पर्टिकुलर टाइम मतलब 1 to 2 जो हुआ, ये क्या हो गया, रिलेटिव डेडलाइन। मतलब 1 hour लेक्चर लेना है, मैंने 1 hour कंप्लीट किया। सारा समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। The processor are also known as active resources. They are essential for execution of job, क्योंकि प्रोसेसर में ही जॉब हमारे सारे एग्जीक्यूट होंगे। A job must have one or more processor in order to execute and proceed towards completion. Example, computer translation link. ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे सिस्टम में एक मतलब ऑक्टा कोर प्रोसेसर और हेक्सा कोर प्रोसेसर, मतलब कि हमारे एक प्रोसेसर के अंदर 6 कोर प्रोसेसर होते हैं या फिर 8 कोर प्रोसेसर होते हैं, डिपेंड कि हम कौन सा टाइप का प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक जो जॉब है वो मल्टीपल प्रोसेसर को यूज कर सकता है। रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज पैसिव रिसोर्सेज। A job may or may not require resources during its execution. Example, memory और mutex। अभी देखो क्या है कि अभी अगर हम देखें तो आप क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेटर आपने ओपन किया अपने लैपटॉप के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर, आपने प्रेस किया 2+2, ठीक है। 2+2 किया तो आपने ये इनपुट दिया कीबोर्ड से, मतलब कि आपने इनपुट डिवाइस को यूज करके आपने इनपुट दे दिया, और जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे मतलब वो डेटा आपने सबमिट कर दिया आपके सिस्टम को, ठीक है। अब वो प्रोसेसर क्या करेगा, वो डेटा को लेगा और उसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तो जब वो एग्जीक्यूशन होता है तब आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जरूरत नहीं होती। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया है, रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज पैसिव रिसोर्सेज। अ जॉब मे और मे नॉट रिक्वायर अ रिसोर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बताया आपको? हेलो, Yes, sir. two resources are identical if they can be used interchangeably, else they are heterogeneous, ठीक है। अब two resources are identical if they can be used interchangeably, मतलब कि अगर दो resources है, कोई भी आपके माउस और कीबोर्ड, ठीक है, माउस कीबोर्ड अगर मान लो मेरे दो रिसोर्सेस है, मतलब दो इनपुट डिवाइसेस है, अगर मैं दोनों को इंटरेक्ट करके यूज कर रहा हूँ तो इंटरचेंजेबली होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को यूज नहीं कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से कभी कम्युनिकेशन नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस, ठीक है। इस तरीके से ये हम टर्म यूज करते हैं रियल टाइम सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिफरेंस देखेंगे रियल टाइम और मतलब कि नॉन रियल टाइम। हेलो, Yes, Yes. आवाज आ रही है मेरी? किसी को कोई डाउट जो मैंने अभी तक आपको बताया इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है। अभी देखो, आपको पीपीटी मतलब जितना टॉपिक हम लोग डेली करते जा रहे हैं वो ना वैसा चाहिए या फिर कंप्लीट यूनिट का एट द एंड ऑफ यूनिट चाहिए? जितना जितना होता है उतना। ओके ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आज तक का मैंने जितना पढ़ा है यहाँ तक मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आपके इसमें व्हाट्सएप में। Yes. Yes, sir. Yes. चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखते क्या है। थैंक यू। Thank you, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you.